Good morning, my dear student. Today we are going to read your chapter 3, An Empire Across Three Continents. In this chapter, we have discussed about Roman Empire, Roman administration, Roman expansion, economic expansion, and other important topics. Today, we are going to read the controlling workers. Before we start this chapter, before we start this topic, I would like to recall you that in my previous video I have discussed the economic expansion. In this topic, we have read that the economic expansion of the Roman Empire and what was the area where they did work. I have discussed that in the trade areas, trade fields, they connect with the material across Mediterranean Sea, Roman Empire. I mean to say that जर्मनी और कभी कभी इंग्लैंड तक के क्षेत्रों तक इन्होंने इंग्लैंड के क्षेत्र से लेकर के ये नीचे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट इजिप्ट और एशिया में ये ईरान तक के क्षेत्रों को कनेक्ट किए व्यापारिक स्तर पे। फिर हमने पास्टुरेशन इंडस्ट्री के बारे में बात की। हमने कहा कि पशुपालन उद्योग का विकास हुआ, खेती में बात किया हमने कहा नदियों के सिंचित क्षेत्र थे इसलिए यहाँ पे खेती भी पर्याप्त हुई। तो इस तरीके से रोमन एम्पायर के एक्सपेंशन पे हमने विस्तार से चर्चा की। हमने कहा व्यापार में दासों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। दास जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। इन दासों के महत्व को समझने के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोलिंग वर्कर्स है उसे देखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने अपना लास्ट क्लास वहीं एंड किया था। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग वर्कर्स। कंट्रोलिंग वर्कर्स में कि किस तरीके से श्रमिकों पर नियंत्रण स्थापित किया गया और कुछ स्टोरी दी गई है कि दासों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता था। इन चीज़ों को हम देखेंगे। पहले कंट्रोलिंग वर्कर्स पे बात करते हैं। कंट्रोलिंग वर्कर्स। Slavery was an institution deeply rooted in the ancient world, both in the Mediterranean and the Near East. And did not even the Christianity when it emerged and the trumped as state religion in the 4th century seriously challenged this institution. It does not follow that the bulk of the labor in the Roman economy was performed by slaves. That many have been true of large part of the Italy. In the Republican period under Augustus, there were still 3 million slaves in the total Italian population of 7.5 million. But it was no longer true of the empire as a whole. Slaves were an investment, and at least one Roman agriculture writers advised the landowner against using them in context where too many might be required, for example, for harvest, or where their health could be damaged, for example, by malaria. These considerations were not based on any sympathy for the slavery, but on hard economy, the calculation. On the other hand,
if the Roman upper class were often brutal towards the slaves. These considerations were not based on any sympathy for the slave but on hard economic calculation. On the other hand, if the Roman upper class were often brutal towards their slaves, ordinary people did sometimes how much more compassion. See what one historian says about a famous incident that occurred in the right the occur in the reign of Nero. My dear student, author want to inform you about the condition of the slaves in the Roman Empire during Augustus period. एक कहानी बता रहा है कि किस तरीके से उस क्षेत्र में दासों के प्रति व्यवहार किया जाता था, दासों की क्या दशा थी। इन चीज़ों पे आधार आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने जाना। आथर कहता है कि भूमध्य सागरी मेटेरियंस का जो निकटवर्ती पूर्व का इलाका था, भूमध्य सागर के निकटवर्ती पूर्व पश्चिम एशिया जिसे कहते थे, दोनों ही क्षेत्रों में स्लेवरी की जड़ें बहुत गहरी थी। 4th सेंचुरी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इसे गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी गई। क्रिश्चियनिटी जो कहती थी कि ह्यूमैनिटी पे बड़ा बल देती थी, लेकिन उसके बाद क्रिश्चियनिटी राजधर्म बना, उसके बाद भी इन लोगों ने स्लेवरी सिस्टम पे कोई रोक टोक नहीं लगाई। इसका अर्थ यह नहीं कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में, रिपब्लिक एरा में महत्वपूर्ण था। कहता है, इट डज नॉट दैट द बल्क ऑफ द लेबर इन द रोमन was performed by slaves that may have a large part of the Italy that the Republican period। कहता है कि एक इसका अर्थ हम कभी नहीं लगा सकते हैं कि रोमन की अर्थव्यवस्था में अधिकांशतः श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, तथापि यह बात गणतंत्र काल में इटली के मामले में सही हो सकती है। रिपब्लिकन एरा में इटली के संदर्भ में यह बात सही कही जा सकती है, जहां अगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। 75 मिलियंस पॉपुलेशन में 3 मिलियंस दास थे, किंतु समग्र साम्राज्य की स्थिति ऐसी नहीं थी। इन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। दास स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट, दास को पूंजी निवेश के रूप में देखते थे। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भ में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो। एक लेखक कहता है जमींदारों से कि आप ऐसे क्षेत्रों में दासों की बड़ी संख्या का प्रयोग ना करें जहाँ पे कोई एपिडेमिक या कोई ऐसी समस्या हो जो मानव समाज के लिए हानिकारक हो, जैसे मलेरिया फैल जाए, जैसे स्वास्थ्य के लिए लेकर कोई समस्या उत्पन्न हो। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। ये ऐसा क्यों कहा जाता? क्योंकि ये कैलकुलेशन दासों के फेवर में नहीं था। ये कैलकुलेशन इसलिए था कि यदि दासों को उन क्षेत्रों में लगाया जाएगा तो दासों की बड़ी संख्या मलेरिया से प्रभावित होकर के ख़त्म हो जाएगी, और फिर एक समस्या, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी रोमन इकोनॉमी में। इसलिए आप कल्पना करिए ये कितनी विचित्र बात है। कहता ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। एक और जहाँ उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्रायः क्रूरता का व्यवहार करते थे,
वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। नीरो का शासनकाल में घटी एक घटना इस बारे में महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करती है। नीरो के समय जो घटना हुई उस चीज़ को देखिए, उसमें इतिहासकार क्या कहता है। आइए देखते हैं नीरो के समय में कौन सी घटना घटी। On the treatment of slaves. Soon afterward, the city the perfect, the Lucius, the Padinus, Scandus was murdered by one of his slaves. After the murder, ancient custom required that every slave residing under the same roof must be executed. But a crowd gathered, eager to save so many innocent lives, and rioting began. The Senate House was besieged. Inside there was feeling against the excessive, the severity, but the majority opposed any change. The senators favoring the executions prevailed, however, great crowds ready with stone and torches prevented the order from being carried out. Nero rebuked the population by edict and lined with the troops the whole routes along which the condemned were taken for execution. दासों के साथ क्या व्यवहार किया गया नीरो के राज्य में, एक कहानी बताती है दासों के प्रति व्यवहार। कहता है कुछ ही समय बाद शहर में ल्यूकस पेडेनियस सेकेंड्स का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के पश्चात पुराना नियम था, पुराने रिवाज थे, उसके अनुसार यह आवश्यक था कि एक छत के नीचे रहने वाले दासों की हत्या कर दी जाए। यदि कोई भी दास अपने मालिक की हत्या करता है तो एक छत के नीचे रहने वाले सभी दासों की हत्या कर दी जाती थी। ऐसा नियम रोम में था, नीरो के समय था। अब इसी नियम के थ्रू सारे दासों को फांसी दे दी जाएगी, ये नियम पारित हो गया। परंतु इसमें बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई, दंगे शुरू हो गए और उन्होंने सेनेट भवन को घेर लिया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर से जलती हुई मसाले लिए भारी भीड़ ने इस आदेश के कार्यान्वित करने से रोकने का प्रयास किया। पूरा प्रयास था कि सभी दासों को फांसी न दी जाए, लेकिन नीरो जो वहाँ का शासक था उसने एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहाँ सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। कहने का तात्पर्य था कि राजा ने स्लेव्स को फांसी पे लटकवा दिया, सबको फांसी दे दी गई, जो दोषी था वो और जो उसके साथ निर्दोष थे, जो एक छत के नीचे रहते थे, सब के सब वो फांसी दे दी गई। ये कितनी विचित्र बात थी। गलती किसी की, सजा सबको। ओके, कम टू द पॉइंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट। बाद में आप ये ना कह के दासों के साथ कैसा व्यवहार होता था सर ये नहीं बताए। दासों के प्रति व्यवहार टेसियस के समय 55 to 117
बीसी में जो आरंभिक इतिहासकार है टेसियस, वो इस बात को लिखता है। अब देखते हैं एज ए वारफेयर बिकेम लेस वाइड स्प्रेड with the establishment of the peace in the first century. The supply of slaves tended to decline, and the users of slaves labor thus had it turn either to slave breeding or to cheaper substitutes such as a wage labor, which was more easily dispensable. In fact, free labor was extensively used of public works at Rome precisely because an extensive use of slave labor would have been too expensive. Unlike hired workers, slave had to be fed and maintained throughout the year, which increased the cost of holding this kind of labor. This is probably why slaves are not widely found in the agriculture of the later period, at least not in the eastern provinces. On the other hand, they and the freedom that is slaves who had been set free by their masters were extensively used as the business managers, where obviously they were not required in large numbers. Masters often gave their slaves or freedom capital to run business on their behalf of even business of their own. कहता है कि जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी। दासों के द्वारा किया जा रहा लेबर, दास श्रम का प्रयोग करने वाले को दास प्रजनन, स्लेव ब्रीडिंग अथवा वेतनभोगी मजदूर जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतनभोगी जो मजदूर थे वो सस्ते पड़ते थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था, लेकिन दासों के साथ ऐसा नहीं था। दासों को खाना देना पड़ता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों की व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों का वर्ष भर रखने के लिए उन्हें भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया था को व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। यहाँ स्पष्ट है कि उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी और यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। ये एक विचित्र बात थी। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। दक्षिणी स्पेन से आए हुए पहली शताब्दी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी ज़रूरत से दोगुनी संख्या में उपकरण तथा औजार को सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम, समय की हानि ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती है। द रोमन agricultural writers paid a great deal of the attention of the management of labor. Columella, a first century writers who came from the south of Spain, recommended that the landowners should keep a reserve stock of the
implements and tools, twice as many as they needed, so that production could be the continuous for this loss of slave labor. Time exceeds the cost of such items. There was a general presumption among employee without the supervision no work would ever get done. The supervision was the paramount for both free worker and slave. To make supervision easier, workers were sometimes grouped in the gangs or smaller teams. Columella recommended the squads of 10, claiming it was easier to tell who was putting in effort and who was not in work. Groups of the size. This show as detailed considerations for the many management of labor. Pliny, elder author of very famous natural history, condemned the use of slave gangs as the worst method of organizing production, mainly because slavery who worked in gangs were usually chained together by their feet. कहता है कि नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये निरीक्षण इंस्पेक्शन को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोलुमेला ने 10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह दावा किया था कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि इनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। इससे पता चलता है कि उन दिनों सम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। प्लिनी सीनियर एक प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञान के लेखक, नेचुरल हिस्ट्री जो बुक उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की, कंडेम किया कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों का आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट था। प्लिनी ने इस बात के लिए बड़ी जोर के साथ इसका विरोध किया है कि उनके पैरों में बेड़ियां डाल करके उनको इस काम के लिए मजबूर किया जाता था। All this looks the draconian, but we should remember that most factories in the world today enforce similar principles of labor control. Indeed, some industrial establishments in the empire enforced even the tight control. Elder Pliny described conditions in the frankness factories of Alexandria, where he tells us no amount of supervision seemed to suffice. A seal is put upon the workman aprons. They have to wear a mark or net with a closed mesh on their hands, and before they are allowed to leave the premises, they have to take off all their clothes. Agriculture labor must have been the fatiguing and dislike for a famous edict of the early 3rd century, referred to Egyptian peasants deserting their village in order not to engage in the agricultural work. The same was probably true of most factories and workshops. A law of 398 referred to workers being branded so they could
be recognized if and when they run away and try to hide. Many private employees cast their agreements with the workers in the farm debate contract to be able to claim that their employer were in debt to them and thus ensure a higher encounter over them. An early second century writer tells us the thousands surrendered themselves to work in the servitudes although they are free. In other words, a lot of the poor poorer families went into debt belong in order to survive. From one of the recently discovered letter of Augustine, we learn that the parents sometimes sold their children into, into servitudes for a period of 25 years. Augustine asked lawyer friends of his whether the children could be liberated once the father died. Ruler indebtedness was even more widespread. To make just one example, in the Great Jewish Revolt of 66 CE, the revolutionaries destroyed the moneylenders' bond to win the popular support. Okay, all the looks the draconian, ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते थे। इनका विरोध प्लिनी कर रहा था। प्लिनी जब कह रहा था कि दासों के उस तरीके पे जिसमें उनके पैरों में जंजीर डाल के एक साथ रखा जाता था और काम कराया जाता था, उसकी वो कड़ी सी निंदा करता था। मैं कहता ऑल द लुक्स ड्रैकोनियन, ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते थे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियाँ, आज विश्व की सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ हैं, उस पर श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती है। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। एल्डर प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्री के हालात का वर्णन किया है। फ्रैंकिनसेंस की जो फैक्ट्री है वो कहता है कि जहाँ इन वर्कर्स के साथ, इन स्लेव्स के साथ उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो, ये उनके लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होता। कामगारों को एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री के बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहने लगते हैं और उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि तीसरी शताब्दी में एक राजा के आदेश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्री और कारखानों पर लागू होती रही होगी। 398 CE के कानून में यह कहा गया कि कामगारों को क्या किया जाएगा, दागा जाएगा, मतलब गर्म लोहे से उनके ऊपर निशान बना दिए जाएंगे ताकि वो भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ, कामगार मतलब वर्कर्स के साथ ऋण संविदा के रूप में, डेप्ट बॉन्ड के रूप में करार कर लेते थे ताकि वह यह दावा कर सकें कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं, और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। दूसरे शताब्दी, सेकेंड सेंचुरी तक, प्रारंभिक अवधि तक एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामी का काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ये ऋणबद्धता, ये जो डेप्ट बॉन्ड पे सिग्नेचर कर दिया। कभी कभी माता पिता अपने बच्चे को 25 वर्ष के लिए बेचकर बधुआ मजदूर बना देते थे। अगस्टिन ने एक बार अपने
एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने के बाद क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था। ग्रामीण ऋण का सत्ता और अधिक व्यापक थी। गाँव में गरीबी अधिक थी, इसलिए गांव के जो गरीब लोग थे वो अपने बच्चों को 25 साल तक के लिए बेच देते थे। अगस्तीन अपने दोस्त से वकील से पूछता है कि क्या इनको कभी मुक्त किया जा सकता है। ऐसी दुर्दशा को देख करके उसका दिल रोता है। इस कर्जदारी को एक उदाहरण इस घटना से भी मिलता है कि 66 सी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र नष्ट कर डाले। Again, we should be careful. To conclude, the bulk of labor was the coerced in this way. The late 5th century, Emperor Augustus attracting labor from all over the east by offering high wages from the papyri. We can even from some estimate of so widespread wages labor had become in the parts of the Mediterranean by the 6th century, especially in the east. कहता है कि फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए प्राप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में सम्राट अगस्टस ने ऊंची मजदूरी देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा के शहर का निर्माण कराया। कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपायरस के बहुवचन से हमें अनुमान लगा सकते हैं कि 6वीं शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विशेषकर पूर्वी भाग में वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए। कहता है कि जो कंडीशन जो इस दासों की थी, ऐसा नहीं था कि दास इसी तरीके के थे, उनकी स्थिति बदली। अगस्टस की घटना का उल्लेख करके इसको समझ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सोशल हेरिटेज की। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।